आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। इसका से जो है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, इंडस, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। पहले क्या है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद क्या है गंगा, उसके बाद क्या है गोदावरी, उसके बाद है इंडस, उसके बाद है महानदी। दिस मीन्स फर्स्ट नंबर पे है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद है सेकंड पर गंगा, उसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है इंडस, उसके बाद है महानदी, उसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है नर्मदा। ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन द drainage system of India has been divided into Arabian Sea drainage and Bay of Bengal drainage. 77% of the drainage area of the country is consists of Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Kaveri. ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है नेम द रिवर्स ऑफ इंडिया हुज माउथ लाइज इन बे ऑफ बंगाल। बोलते हैं नेम द रिवर्स ऑफ इंडिया हुज माउथ लाइज इन बे ऑफ बंगाल। इसका सही है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। क्वेश्चन है द गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, कावेरी or the west or the east flowing rivers, that is they go into the Bay of Bengal, while as Indus, Narmada, Tapi, Sabarmati, Mahi, Prayar are the west flowing rivers and they go into which they go into Arabian Sea। ये आपने याद रखना होगा। 90% of the water carried by Indian rivers is drained into इसके Bay of Bengal, ठीक है ना, and rest into Arabian Sea. On the base of origin of rivers, the Indian drainage can be divided into Himalayan drainage system and peninsular drainage system, ठीक है ना। On the base of origin, the Indian rivers can be divided into हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर के बारे में। द हिमालयन रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स कवर्ड विद ग्लेशियर्स, ठीक है ना। द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, तो आपने पहले द हिमालयन रिवर्स हिमालयन रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स कवर्ड विद ग्लेशियर्स। पेनिनसुलर रिवर्स इसका जो द पेनिनसुलर रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड। तो आपने याद रखना पहले वेयर इज द सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स, इसका जो हिमालयन माउंटेन्स। वेयर इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, इसका पेनिनसुलर प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ हिमालयन रिवर्स पेरिनियल नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ हिमालयन रिवर्स पेरिनियल नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, इसका सीजनल एंड दे डिपेंड ऑन मॉनसून, ठीक है ना। तो आपने याद रखना द हिमालय, तो आपने व्हाट इज द नेचर ऑफ हिमालयन रिवर्स पेरिनियल नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल नेचर। The Himalayan rivers are dependent on glaciers and rainfall. The Himalayan rivers are dependent on glaciers and rainfall. The peninsular rivers are dependent on monsoon and rainfall. The peninsular rivers are dependent on monsoon and rainfall. Question है the Himalayan rivers have incidental type of drainage, ठीक है ना। The Himalayan rivers have which type of drainage? Incidental drainage, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है the Himalayan rivers have which type of drainage, इसका सही है antecedental drainage, ठीक है ना। The Himalayan rivers have which type of drainage? Antecedental drainage. The peninsular rivers have which type of drainage, इसका सही है superimposed drainage, ठीक है ना। The peninsular rivers have which type of drainage? Superimposed drainage. How is the nature of Himalayan rivers? इसका the nature of Himalayan rivers is long course flows through rugged mountains. तो आपने what is the nature of flow of Himalayan rivers? It says the nature of Himalayan rivers is the nature of flow of Himalayan rivers is long course flows through rugged mountains. What is the nature of peninsular rivers? It says the nature of peninsular rivers is small fixed course with well adjusted valleys. Which rivers are the Himalayan rivers are young. The perennial rivers in the peninsular rivers are older, ठीक है ना। The Himalayan rivers are young while as the peninsular rivers are old। ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना होगा इसमें Himalayan rivers have incidental drainage, that is the Himalayan rivers were in existence before the uplift of Himalayas, ठीक है ना। This means incidental drainage means that the Himalayan rivers were already existing before the uplift of Himalayas, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर, ठीक है ना। तो आपने याद रखना होगा इसमें ड्यूरिंग मॉनसून सीजन दे रिसीव हैवी रेनफॉल एंड रीच मैक्सिमम डिस्चार्ज। द हिमालयन रिवर्स आर जियोलॉजिकली अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। द हिमालयन रिवर्स आर इन जियोलॉजिकली अनस्टेबल कंडीशन, ये आपने याद रखना होगा इसमें। द हिमालयन रिवर्स हैव इमेच्योर वैलीज। तो आपने द हिमालयन रिवर्स हैव इमेच्योर वैलीज। The Himalayan rivers are characterized by number of waterfalls, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। The Himalayan rivers are characterized by number of waterfalls. उसके बाद है peninsular river. The peninsular rivers originate at inner latitudes drain and which are geologically most stable, ठीक है ना। तो आपने the peninsular rivers are geologically stable, ठीक है ना। The peninsular rivers have reached a base level, have high gradients, ठीक है ना। The peninsular rivers large deltas are formed by large rivers at their mouth. तो आपने याद रखना है जो Himalayan rivers है they do not form deltas while as the peninsular rivers form deltas, ठीक है ना। This means large deltas are formed by the peninsular rivers at their mouth, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है।
द पेनिनसुलर रिवर्स आर मच ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपने याद रखा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, तो आपने याद रखा मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू वेस्ट, ठीक है ना। ये आपने याद रखा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट बिकॉज मेन वाटर शेड लाइज इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। ये आपने याद रखा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट, ये आपने याद रखा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू ईस्ट, तो आपने याद रखना मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एज देयर वाटर शेड इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखना द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स are flowing eastwards because the main watershed of peninsular rivers lies in western Ghats, ठीक है ना। ये आपने याद रखना तो आपने मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, तो आपने फैक्ट मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ईस्टवर्ड एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, ठीक है ना। ये आपने याद रखना मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर, तो आपने मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एक्सेप्ट, इसका सिर्फ है नर्मदा एंड तापी वाले, तो आपने मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग वाइल एज नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पहले बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरिया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, इसका जवाब 2880 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, तो आपने पहले याद रखना द इंडस इज आल्सो कॉल्ड इन इंडिया, इंडस इज कॉल्ड सिंधु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इन तो आपने रखा द इंडस इज इन इंडिया द इंडस इज नोन एज सिंधु, बहुत इन इंडिया द इंडस रिवर इज कॉल्ड एज सिंधु। क्वेश्चन है इन तिब्बत द इंडस रिवर इज कॉल्ड एज सिंगी खाम्बान और लायनस माउथ, बहुत इन तिब्बत इंडस रिवर इज कॉल्ड एज, इसका सही है सिंगी खाम्बान और लायनस माउथ, तो आपने द इन तिब्बत द इंडस रिवर इज नोन एज इज कॉल्ड एज सिंगी खाम्बान और विच मीन्स लायनस माउथ। क्वेश्चन है द इंडस रिवर originates from which glacier, इसका जवाब है बोकुरचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत इन कैलाश माउंटेन रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिवर इंडस originates from which glacier, इस पे बोकुरचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर, ठीक है ना। तो आपने अंदर इसमें द इंडस रिवर originates from, इसके बोकुरचू ग्लेशियर विच लाइज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत इन कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है ना। तो आपने द रिवर इंडस originates from which glacier, इस पे बोकुरचू ग्लेशियर, द बोकुरचू ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर विच लेक, इसका जवाब मानसरोवर लेक। The Bokurchu Glacier lies in which mountain range? Kailash mountain range. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने बोला। The Indus River originates from which glacier? Bokurchu Glacier. The Bokurchu Glacier is located near which lake? Mansarovar Lake in Tibet, ठीक है ना। Mansarovar Lake in Tibet. And the Bokurchu Glacier is located in which mountain range? इसमें कैलाश mountain range, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस, इसका सही जवाब है 2880 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस, 2880 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस इन इंडिया, इसको 709 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडस इन इंडिया, इसका जवाब है 709 किलोमीटर। द इंडस फ्लोज बिटवीन, इसको लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये आपने याद रखना है। द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। The Indus enters into Pakistan near Chalar, Dardistan, तो आपने the Indus River enters in Pakistan near which region, इसमें Chalar in Dardistan। तो आपने याद रखना होगा इसमें इंडस में Indus is the westernmost Himalayan river in India, इसका सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which is the westernmost Himalayan river in India, इसका जवाब है Indus। which is the westernmost Himalayan river in India, इसका जवाब है Indus। तो आपने फैक्ट याद रखा द इंडस राइजेस इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड एज लायनस माउथ, ठीक है ना। ये आपने उसमें द इंडस फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंज, ठीक है ना। तो आपने द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंज एंड इट पास थ्रू लद्दाख एंड बल्तिस्तान, ठीक है ना। ये आपने उसमें द इंडस रिवर फ्लोज in northwestern direction, तो आपने after rising from Bokurchu glacier the Indus river flows northwestern direction between Ladakh and Zanskar range and it passes through Ladakh and Baltistan. The Indus river cuts across Ladakh range and forms a spectacular gorge near Gilgit in J&K and finally enters into Pakistan near Chalar in Dardistan region, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें
The river Indus originates from Bokarachu Glacier in Tibet, and after that it flows in northwest direction between Ladakh and Zanskar range, and it passes through Ladakh and Baltistan, and it cuts across the Ladakh range and forms a spectacular gorge near Gilgit in J&K, and finally enters into Pakistan near Chillar in Dardistan region. Name major tributaries of Indus. इसका जवाब Zanskar, Nubra, Shiok, Gilgit. तो आपने नेम इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स, नेम इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, इसके बाद ज़नस्कार, नुब्रा, शियोक, गिलगित, सुरु, झेलम, चनाब, ठीक है ना, ये आपने याद रखोगे। इसमें रावी, बीस, सतलुज, ये आपने याद रखना इसमें रावी, बीस, सतलुज, ठीक है ना। नेम इंपॉर्टेंट बोल, नेम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, इसका सही जवाब है वो है नुब्रा, सॉरी वो है ज़नस्कार। नेम इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, ज़नस्कार, नुब्रा, शियोक, गिलगित, सुरु, झेलम, चनाब, रवि, बीएस, सतलुज। तो आपने याद रखा in Jammu and Kashmir the Indus River has its name the tributaries which are located in Jammu, name the tributaries of Indus River which are located in Jammu and Kashmir. इसमें ज़नस्कार, द्रास, शियाक, शिगार, नुब्रा, गिलगित, झेलम, चनाब, रवि, बीएस, सतलुज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। Name important major tributaries of river Indus, इसमें ज़नस्कार, नुब्रा, शियाक, गिलगित, सुरु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। तो आपने फैक्ट याद रखना, द इंडस रिवर फ्लोज ओनली इन इंडिया ओनली थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद लेह डिस्ट्रिक्ट। तो आपने द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद लेह डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंडस, तो आपने फैक्ट द इंडस रिवर फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद लेह डिस्ट्रिक्ट इन J&K। तो आपने फैक्ट द इंडस रिवर रिसीव्स ए नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज ज़नस्कार, नुब्रा, शियाक, गिलगित, सुरु, झेलम, चनाब, रावी, बीस, सतलुज, ठीक है ना। एंड रवि एंड, तो आपने याद रखना इसमें द इंडस रिवर फाइनली emerges out of hills near Attock where it receives Kabul River on its right bank. The other important tributaries joining on the right bank of Indus are Khurram, Tochi, Gumal, Vibu, Sangar. They all originate in Sulaiman Range, ठीक है ना। ये आपने the main the tributaries of ये they all originate in Sulaiman Range, ठीक है ना। The Indus River flows southward and receives Panjnad, ठीक है ना, ये आपने कहा the Indus River flows southward and receives Panjnad a little above Mathankot. The Panjnad is name given to 5 rivers of Punjab, namely Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum. The river Indus finally discharges into Arabian Sea east of Karachi. तो आपने कहा the Indus River finally discharges into Arabian Sea east of Karachi. The Indus, तो आपने fact है the Indus River flows in India only through Leh district of Jammu and Kashmir. The Suru River is obscure tributary, ठीक है ना। Which is the obscure tributary of river Indus? इसके भी Suru. Which is the obscure tributary of river Indus? Is Suru. This means Suru is obscure tributary originating from Dosi mountain near Burzila Pass, ठीक है ना। Suru जो है it is an obscure tributary originating from Dosu mountain near Burzila Pass. तो आपने which tributary of Indus River is obscure tributary, solve करना है which is the obscure tributary of river Indus, इसका सही जवाब है which is the obscure tributary of river Indus. Suru River is the obscure tributary originating from Dosu mountain near Burzila Pass. पहले बात करते हैं झेलम की, जो ट्राइब्यूटरी है रिवर इंडस की। द झेलम इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस, इट राइज फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, ठीक है ना। तो आपने कहा द वेयर इज द सोर्स ऑफ झेलम, इसका जो है वेरीनाग एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है द झेलम रिवर जॉइन्स चनाब नियर, इसका जो जंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने फैक्ट याद रखना, द झेलम जो है इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर वोलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, ठीक है ना, ये आपने रखा द झेलम रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वोलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू ए डीप गोरेज, ठीक है ना। द क्वेश्चन है वेयर डज झेलम रिवर joins with Chenab, इसका समय नियर जंग इन पाकिस्तान, ठीक है ना। दिस मीन्स द झेलम रिवर जॉइन्स चनाब एट विच प्लेस विद जंग इन पाकिस्तान। अब बात करते हैं चनाब के बारे में। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस, इसके बाद चनाब बोलेंगे विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस, इसके बाद चनाब। द चनाब इज फॉर्म्ड ऑफ टू स्ट्रीम्स दैट चंद्रा एंड बागा, ठीक है ना, यह आपने याद रखना होगा इसमें। क्वेश्चन है चंद्रा एंड बागा विच आर द टू स्ट्रीम्स विच मेड चनाब मीट एट, इसके बाद टांडी। द चंद्रा एंड बागा मीट एट, इसका बाद जॉइन एट, इसके बाद टांडी। हेनस द चनाब रिवर इज ऑल्सो नोन एज चंद्रा बागा, यह आपने याद रखना होगा। इट ऑल्सो गोज टू द पाकिस्तान, ये आपने याद रखना होगा इसमें।
क्वेश्चन है, आपने फैक्ट याद रखना है, किशन गंगा इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, किशन गंगा इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, विच इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, इसका जवाब है किशन गंगा। चनाब जो है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम जंस्कार रेंज लाहौल स्पीति नियर बारालाशला पास इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, चनाब रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका जवाब है जंस्कार रेंज लाहौल स्पीति नियर बारालाशला पास। तो आपने याद रखना है चनाब जो है, चनाब रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, तो आपने याद रखना है चनाब रिवर जो है it originates from Chenab river originates from which mountain pass, Baralashla pass near Lahore Spiti Himachal Pradesh। तो आपने the Chenab river originates from Baralashla pass। तो आपने फैक्ट याद रखना, द इंडस रिवर फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस बोलते हैं द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू द लेफ्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपने याद रखूंगा इसमें। तो चनाब के बारे में हम बात करते थे, चनाब रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका बारालाशला पास लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। अब बात करते हैं रिवर रावी के बारे में। द रिवर रावी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरावती, बोलते हैं द रिवर रावी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरावती, ठीक है ना, ये आपने द रिवर रावी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरावती, ठीक है ना, द रिवर रावी इज कॉल्ड एज, इसका जवाब है इरावती। द रिवर रावी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका जवाब है रोहतांग पास, बहुत ही क्वेश्चन है, द रिवर रावी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका जवाब है रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो आपने द रिवर रावी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका जवाब है रोहतांग पास। तो आपने देखा द रिवर रावी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच हिल्स, इसमें कुल्लू हिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिवर रावी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, तो आपने द रिवर रावी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच पास, रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, एंड फ्लोज थ्रू चंबा वैली ऑफ द स्टेट। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान द रिवर रावी जॉइन्स द चनाब नियर सराय सिंधु। तो आपने फैक्ट याद रखना, द रिवर रावी जॉइन्स चनाब एट, इसका जवाब सराय सिंधु, बोलते द रिवर रावी जॉइन्स चनाब एट, इसका जवाब सराय सिंधु। अब बात करते हैं ब्यास रिवर के बारे में, ठीक है ना, ब्यास रिवर इट इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका बीस कुंड नियर रोहतांग पास, ठीक है ना, तो आपने बोला वेयर इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्यास रिवर, इसका जवाब बीस कुंड नियर रोहतांग पास, बहुत ही क्वेश्चन है। द ब्यास रिवर, बोलते द ब्यास रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका जवाब है ब्यास कुंड। तो आपने द ब्यास रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, ठीक है ना, ये आपने द ब्यास रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास नियर, तो आपने द ब्यास रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका ब्यास कुंड नियर विच पास, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, ये भी आपने याद रखा। क्वेश्चन है, आपने याद रखा द ब्यास रिवर एंटर्स पंजाब प्लेन्स वायर इट मीट्स सतलुज नियर हरकाई, ठीक है ना, तो आपने याद रखना द ब्यास रिवर मीट्स विच रिवर एट हरकाई। सवाल द ब्यास रिवर मीट्स सतलुज रिवर एट विच प्लेस वे हरकाई, बोलते द ब्यास रिवर मीट्स, द ब्यास रिवर जॉइन्स सतलुज एट, इसका हरकाई, बोलते द ब्यास रिवर जॉइन्स सतलुज एट, इसका जवाब है हरकाई, ठीक है ना, हरकाई जो है इट इज एट अमृतसर पंजाब, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। ब्यास रिवर का आपने फैक्ट याद रखना, द ब्यास रिवर स्टार्ट्स एज वेल एज एंड्स विद इन इंडिया। द ब्यास रिवर, द मेन फीचर एसोसिएटेड विद ब्यास रिवर इज दैट इट स्टार्ट्स एज वेल एज एंड्स विद इन इंडिया। अब बात करते हैं सतलुज के बारे में। द सतलुज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसके बाद रक्स लेक, बोलते हैं द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसके बाद रक्स लेक नियर मानसरोवर, बहुत ही क्वेश्चन है। द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक, इसके बाद रक्स लेक नियर मानसरोवर, ठीक है ना। क्वेश्चन है इन तिब्बत द सतलुज रिवर इज नोन एज, बहुत ही क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना इसमें द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसके रक्स लेक इन मानसरोवर इन तिब्बत, ठीक है ना, तो आपने उसमें द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसके रक्स लेक, बोलते द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक, इसमें रक्स लेक नियर मानसरोवर इन तिब्बत द सतलुज इज कॉल्ड एज, इसका सब लगचन खंबाब, तो इन तिब्बत, तो आपने याद रखना द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, बोलते द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका सही जवाब है रक्स लेक नियर मानसरोवर इन तिब्बत द सतलुज लेक इज नोन एज लगचन खंबाब इन तिब्बत, व्हाट इज द, तो आपने इन तिब्बत द सतलुज रिवर इज नोन एज, इसका लगचन खंबाब इन तिब्बत द सतलुज रिवर इज कॉल्ड एज लगचन खंबाब। द सतलुज रिवर इज एंटीसीडेंटल रिवर, ये आपने द सतलुज रिवर इज एंटीसीडेंटल रिवर, ठीक है ना। क्वेश्चन है द सतलुज रिवर फीड्स विच कैनाल, इसका सही बरखा नंगाल प्रोजेक्ट, बहुत ही क्वेश्चन, द सतलुज रिवर फीड्स विच कैनाल, इसका बरखा नंगाल प्रोजेक्ट, बहुत ही क्वेश्चन है। द सतलुज रिवर, बहुत द सतलुज रिवर फीड्स विच कैनाल, इसका सही बखार नंगाल प्रोजेक्ट।
तो आपने याद रखना सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इस पे लक्स लेक, तो द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका सिर्फ है रक्स लेक नियर मानसरोवर इन तिब्बत द सतलुज इज कॉल्ड एज, इसका सिर्फ लगचन खंबाब, and the Satluj river enters India near which pass, इसमें शिपकिला पास, बोलते हैं the Satluj river, बोलते the Satluj river enters India, बोलते हैं the Satluj river enters India through which pass, इससे जो है शिपकिला पास, बोलते हैं मेरे क्वेश्चन है the Satluj river enters India through which pass, इसका जो है शिपकिला पास, which क्वेश्चन मार्क the Satluj river feeds which project, इसका जो है बखरा नंगाल प्रोजेक्ट। तो फैक्ट आपने याद रखना इसमें बियास जो है इट्स ओरिजिन एज वेल एज, तो आपने इसमें इट्स ओरिजिन एज वेल एज माउथ लाइज विद इन इंडिया, तो आपने विच रिवर हैज इट्स ओरिजिन एज वेल एज माउथ इन इंडिया, इसका जो बियास ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका जो कुंड नियर रोहतांग पास, ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं रिवर रावी के बारे में, ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो फैक्ट आपने याद रखना दब्स, द रीजन बिटवीन रिवर्स इज कॉल्ड दब्स, द रीजन बिटवीन रिवर्स इज कॉल्ड दब्स, चेज़दब is between, इसका Jhelum and Chenab, the dub between Jhelum and Chenab is called, इसका Chesdab, the dub between Chenab and Ravi is called, इसका Richna dub, the dub between Chenab and Ravi is called Richna dub, the dub between Ravi and Bias is known as Bari dub, the Bari dub, the dub between river Ravi and Bias is known as Bari dub, the dub between Bias and Satluj is called Bistu dub, the dub between Bias and Satluj, the dub between Bias and Satluj is known as Bistu dub, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें the dub between Chenab and Jhelum is called, the dub between Chenab and Jhelum is called Chesdab, ठीक है ना, Chesdab, the dub between Chenab and Ravi is called, इसका Richna dub, Richna dub, the dub between Chenab and Ravi is known as Richna dub, the dub between river Ravi and Bias is known as Bari dub, the dub between Bias and Ravi is called Bari dub, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो आपने पहले याद रखना द दब बिटवीन चनाब एंड झेलम इज कॉल्ड, इसका चिज़दब, द दब बिटवीन रावी एंड चनाब इज कॉल्ड रिचना दब, द दब बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर इज कॉल्ड बारी दब, द दब बिटवीन Bias and Satluj is called Bist dub. Panjnad is the form where all 5 rivers finally meet. That is JCBRS meet is called Panjnad, ठीक है ना। तो आपने इसमें फैक्ट याद रखूंगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। तो पहले आपने याद रखना इसमें मेजर सिटीज ऑन इंडस, इसका जो है ऑन इंडस इट इज लेह, ऑन सुरु, करगिल एंड चुटॉक डैम, ठीक है ना, चुटॉक डैम, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। मेजर सिटीज ऑन नेम द मेजर सिटीज विच आर लोकेटेड ऑन इंडस, इसका जो है लेह, ऑन सुरु रिवर इट इज करगिल एंड चुटॉक डैम, ठीक है ना। तो ऑन सुरु रिवर इट इज करगिल एंड चुटॉक डैम। फाइनली इंडस डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी नियर कराची इन पाकिस्तान। अब बात करते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइनड, इसका है 19 सितंबर 1960। बहुत ही व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइनड, इसमें 19 सितंबर 1960। बहुत ही क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइनड 19 सितंबर 1960, 1960 मज 19 सितंबर 1960। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइनड, इसका 19 सितंबर 1960 बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। तो आपने द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइनड on which question mark when was Indus water treaty signed, 19 September 1960 between Jawaharlal Nehru and Pakistan President Ayub Khan. The Indus water treaty is brokered by World Bank. The Indus water treaty is brokered by World Bank. The Indus water treaty deals with use of Indus water and its tributaries. So the Indus water treaty deals with the use of Indus water and its tributaries. IJC is for Pakistan. According to Indus water treaty, IJC, ठीक है ना, ऑलरेडी हमें पता है JCBRS जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के। IJCBRS इंडस, झेलम और चनाब जो हैं इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इंडस, झेलम एंड चनाब दे आर फॉर पाकिस्तान। BRS दैट इज ब्यास, रवि एंड सतलुज फॉर इंडिया। तो आपने IJC इज फॉर पाकिस्तान, IJC इज फॉर पाकिस्तान, BRS इज फॉर इंडिया। क्वेश्चन मार्क्स है हाउ मच परसेंट ऑफ इंडस वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय इंडिया, इसको 20%। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड बाय इंडिया, इसको 20%।
प्रोजेक्ट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इंक्लूड किशन गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, किशन गंगा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। नेम द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स विच वायर कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, इसका किशन गंगा। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, नेम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स विच वायर कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर किशन गंगा, तोलबोल प्रोजेक्ट, बगलिहार प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है। नेम इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, इसका जो है नेम द इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इसको किशन गंगा, तोलबोल प्रोजेक्ट, बगलिहार प्रोजेक्ट। तो पहले आपने याद रखना प्रोजेक्ट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इंक्लूड्स किशन गंगा इज यूज्ड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम किशन गंगा टुवर्ड्स झेलम, ठीक है ना। तो आपने द किशन गंगा प्रोजेक्ट इज यूज्ड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम किशन गंगा दैट इज नीलम टुवर्ड्स झेलम। तोलबोल प्रोजेक्ट इज ऑन, इस पर वुलर लेक। बगलिहार प्रोजेक्ट इज ऑन विच लेक, इस पर चनाब लेक। उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसके ट्रिक्स यानी ट्राइब्यूटरीज ऑफ ट्रिक्स इंडस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम गंगा के बारे में। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर, इसमें गंगोत्री ग्लेशियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर, इसमें गंगोत्री ग्लेशियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स, बहुत ही क्वेश्चन है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स, सवाल इस तरह का पहले, विच रिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, गंगा रिवर। The river Ganga originates from which glacier? Gangotri Glacier near Gaumukh. तो आपने the Ganga river originates from which glacier? Gangotri Glacier near Gaumukh in Uttarkashi district of Uttarakhand. तो आपने याद रखना in Uttarkashi district of Uttarakhand. तो आपने the Ganga river originates from Gangotri Glacier near Gaumukh in Uttarkashi district of Uttarakhand. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Ganga river originates from, इसका सही है Gangotri Glacier near Gaumukh in Uttarkashi district of Uttarakhand. तो फैक्ट आपने याद रखना इसमें, द व्हेन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इट इज नोन एज बेगैरथी। तो आपने रखा व्हेन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इट इज नोन एज बेगैरथी। बहुत व्हेन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इट इज नोन एज बेगैरथी। तो आपने फैक्ट व्हेन गंगा, तो आपने द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर वायर इट इज नोन एज बेगैरथी, वाइल एज व्हेन बेगैरथी मर्जेस विद अलकनंदा एट देवप्रयाग इट एज्यूम्स द नेम एज गंगा। तो आपने याद रखना तो फैक्ट आपने याद रखना व्हेन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हेन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इट इज नोन एज बेगैरथी, वाइल एज व्हेन बेगैरथी मर्जेस विद अलकनंदा एट देवप्रयाग इट एज्यूम्स नेम एज गंगा। तो आपने याद रखना एट द सोर्स ऑफ ओरिजिन द गंगा इज नोन एज बेगैरथी, वाइल एज द बेगैरथी मर्जेस विद अलकनंदा, ठीक है ना। तो आपने याद रखना तो आपने फैक्ट याद रखना व्हेन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इट इज नोन एज बेगैरथी, वाइल एज व्हेन बेगैरथी मर्जेस विद अलकनंदा एट देवप्रयाग इट एज्यूम्स इट्स नेम एज गंगा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। तो आपने रखा द बेगैरथी मर्जेस विद अलकनंदा एट विच प्लेस, बहुत द बेगैरथी मर्जेस विद अलकनंदा एट विच प्लेस विद देवप्रयाग वायर इट एज्यूम्स नेम एज गंगा, ठीक है ना, ये आपने द अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इसमें संथम सताफन ग्लेशियर, ठीक है ना। द अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इसमें सताफन ग्लेशियर। तो आपने द अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इसमें सताफन ग्लेशियर, द अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इसमें सतापांत ग्लेशियर, द अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इसमें सतापांत ग्लेशियर। द गंगा एंटर्स प्लेन्स एट हरिद्वार, ये आपने फैक्ट याद रखा द गंगा एंटर्स प्लेन्स एट हरिद्वार, ठीक है ना। Thus Ganga is made up of two rivers, that is Bhagirathi and Alaknanda, ठीक है ना। This means the Ganga is made up of two streams, that is Bhagirathi and Alaknanda, ठीक है ना। Thus Ganga is made up of two streams, Bhagirathi and Alaknanda. Where does Alaknanda and Bhagirathi meet, इसका सही है देवप्रयाग, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा इसमें। तो आपने फैक्ट याद रखूंगा बिफोर, तो आपने याद रखूंगा इसमें पहले फैक्ट बिफोर अलकनंदा मीट्स बेगैरथी एट देवप्रयाग मंडाकनी विच इज कॉल्ड काली गंगा मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द मनाकंडी, तो आपने याद रखना बिफोर अलकनंदा मीट्स बेगैरथी एट देवप्रयाग, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें बिफोर अलकनंदा मीट्स बेगैरथी एट देवप्रयाग मंदाकनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड काली गंगा मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। तो आपने विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बेगारथी, बहुत क्वेश्चन है विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मकांदी। तो आपने फैक्ट याद रखना विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ तो आपने याद रखना इसमें द गंगा हैड टू स्ट्रीम रिवर्स, दैट इज बेगैरथी एंड अलकनंदा विच कंबाइन एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। बिफोर अलकनंदा
बिफोर अलकनंदा मीट्स बेगैरथी एट देवप्रयाग, मनाकंदी मीट्स अलकनंदा, मनाकंदी मनादकनी मनाडकनी मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये आपने याद रखना रुद्रप्रयाग। तो आपने याद रखना इसमें यानी गोडनेथी थी नेरा ची हुई युति गंगा नेरा कत गंगोत्री ग्लेशियर मज अत वन बेगैरथी, बेगैरथी रला अलकनंदा सत पे वन बेगैरथी रला अलकनंदा सत कत देवप्रयाग मज तम पे वन गंगा, मगर अलकनंदास ब्रोटे बेगैरथी सत रला कुस मनाकुंदी मनादकनी या मनादकनी यथ वन काली गंगा, ठीक है ना, कत समखो सो अमस रुद्रप्रयाग मज, रुद्रप्रयाग मज, रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। सो दिस मीन्स तो आपने विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बेगैरथी एंड विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बेगैरथी एंड मनादकनी, इसका सोच में रुद्रप्रयाग, विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बेगैरथी एंड मनाकंदी, बोलते हैं विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बेगैरथी एंड मनाकंदी, इसका रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। उसके बाद है विष्णुप्रयाग, ठीक है ना, विष्णुप्रयाग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा, ठीक है ना। तो आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ, तो आपने विष्णुप्रयाग, तो आपने मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा, तो आपने इसमें द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा इज कॉल्ड, इसका सभी विष्णुप्रयाग, बोलते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा, बोलते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा, बोलते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा इज कॉल्ड, इसमें विष्णुप्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा इज नोन एज द मीटिंग पॉइंट, बोलते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा, बोलते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ, बोलते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ दुल्लीगंगा, तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ, बोलते हैं क्वेश्चन द मीटिंग पॉइंट ऑफ दुल्लीगंगा एंड अलकनंदा, तो आपने फैक्ट द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा इज विष्णुप्रयाग, ठीक है ना। तो आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा, बोलते हैं तो फैक्ट आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा इज कॉल्ड, इसका सभी विष्णुप्रयाग। उसके बाद है कर्णप्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड पिंदार, तो पहले आपने फैक्ट आपने पहले द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा इज कॉल्ड, इसका सब विष्णुप्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड पिंदार इज नोन एज, इसका सब कर्णप्रयाग, ठीक है ना, कर्णप्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड पिंदर, बोलते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा, the meeting point of Alaknanda and Pindri is called, इसके बाद कर्णप्रयाग, the meeting point of Alaknanda and Pindar is called, इसमें the question the meeting point of Alaknanda and Pindri is called, इसके बाद कर्णप्रयाग। क्वेश्चन है द मीटिंग पॉइंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदाकनी, ये आपने नंदाकनी, ठीक है ना, नंदाकनी, तो आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकनी इज कॉल्ड, इसका सिर्फ है नंदाप्रयाग, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकिनी इज कॉल्ड, इसका नंदाप्रयाग। तो पहले आपने याद रखना, तो फैक्ट आपने याद रखना पहले, युति गंगा नेरा कत गंगोत्री ग्लेशियर मज अत वन बेगैरथ रला अलकनंदा सत कत देवप्रयाग मज, मगर बेगैरथ अलकनंदा रलनस ब्रोटे रला एक जाय मनाकंदी सत कत मगर रुद्रप्रयाग सत, ठीक है ना, दिस मीन्स बिफोर, तो आपने बेगैरथी बिफोर मीटिंग विद अलकनंदी मीट्स ननादकिनी, ठीक है ना, ननादकिनी एट दुप्रयाग, ठीक है ना। उसके बाद विष्णुप्रयाग आता है, विष्णुप्रयाग में क्या होता है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दूलगंगा, तो आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड दुल्लीगंगा इज नोन एज विष्णुप्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड पिंदार इज कॉल्ड कर्णप्रयाग, ठीक है ना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकिनी इज कॉल्ड नंदाप्रयाग, ये आपने याद रखना होगा। तो इसमें आपने सेकेंड्स याद रखेंगे, पहला क्या है, विष्णुप्रयाग, ठीक है ना, विष्णुप्रयाग, उसके बाद क्या है, नंदाप्रयाग, उसके बाद क्या है, नंदाप्रयाग, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, कर्णप्रयाग, उसके बाद है कर्णप्रयाग, उसके बाद है रुद्रप्रयाग, उसके बाद है दिप्रप्रयाग, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें।
तो इसके लिए आपने सीक्वेंस याद रखनी होगी। पहला क्या आता है, विष्णु प्रयाग, उसके बाद क्या है, नंदा प्रयाग, उसके बाद है कर्णा प्रयाग, उसके बाद है रुद्रा प्रयाग, उसके बाद है देव प्रयाग। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। पहला क्या है, विष्णु प्रयाग, उसके बाद क्या है, नंदा प्रयाग, उसके बाद है कर्णा प्रयाग, उसके बाद है रुद्रा प्रयाग, उसके बाद है देव प्रयाग। तो पहले आपने याद रखना विष्णु प्रयाग, किसको कहते हैं हम, विष्णु प्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ धूली गंगा एंड अलकनंदा। तो आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ, पहले आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड धूली गंगा इज कॉल्ड विष्णु प्रयाग। ठीक है ना, ये हो गया विष्णु प्रयाग पहले। उसके बाद क्या है, नंदा प्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदी एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदी एंड नंदाकिनी इज कॉल्ड नंदा प्रयाग। ठीक है ना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदी एंड नंदाकिनी। ठीक है ना, तो आपने द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकिनी इज कॉल्ड नंदा प्रयाग। तो पहले आपने याद रखना होगा, इसमें पहला आता है सीक्वेंस में आपने याद रखना, पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद है नंदा प्रयाग, उसके बाद है कर्या प्रयाग, उसके बाद है रुद्रा प्रयाग, उसके बाद है देव प्रयाग। तो पहले है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्या है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ धूल गंगा विद अलकनंदा इज कॉल्ड विष्णु प्रयाग। उसके बाद है नंदा प्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा विद नंदाकिनी इज कॉल्ड नंदा प्रयाग। उसके बाद है कर्णा प्रयाग। कर्णा प्रयाग में क्या है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा विद पंदीर इज कॉल्ड कर्णा प्रयाग। ठीक है ना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड पिंदार इज कॉल्ड नंदा। तो आपने कर्णा प्रयाग, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड पिंदार इज कॉल्ड कर्णा प्रयाग। उसके बाद है रुद्रा प्रयाग। रुद्रा प्रयाग क्या है, बिफोर अलकनंदा मीट्स बेगैरती एट देव प्रयाग, मंदाकिनी मीट्स अलकनंदा एट देव प्रयाग एट रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के बाद क्या है, रुद्र प्रयाग के बाद क्या आता है हमारे देव प्रयाग। देव प्रयाग क्या है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड बेगैरथी। ठीक है ना, देव प्रयाग क्या है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड बेगैरथी इज कॉल्ड देव प्रयाग। ठीक है ना, टू फॉर्म गंगा। तो पहले इसके लिए आपने याद रखना होगा, पहला है विष्णु प्रयाग, उसके बाद है नंदा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंदा प्रयाग, उसके बाद है कर्णा प्रयाग। पहले क्या है, विष्णु प्रयाग, उसके बाद है नंदा प्रयाग, उसके बाद है कर्णा प्रयाग, उसके बाद है रुद्रा प्रयाग, उसके बाद है देव प्रयाग। देव प्रयाग में ही अलकनंदा और बेगैरती मिलती है। तो फैक्ट आपने, द गंगा एंटर्स प्लेन्स ऑफ इंडिया एट विच प्लेस, हरिद्वार। द गंगा एंटर्स प्लेन्स एट विच प्लेस, इसका सिर्फ है। तो आपने द गंगा एंटर्स प्लेन्स ऑफ इंडिया एट विच प्लेस, हरिद्वार। फ्रॉम हियर इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ देन टू साउथ ईस्ट। ठीक है ना, एंड स्प्लिटिंग इन टू डिस्ट्रिब्यूटरीज नेमली बेगैरती एंड हुगली। ठीक है ना, ये आपने अदर्स में गंगा जो है इट एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार एंड हियर एट हर। तो आपने उसमें द गंगा एंटर्स प्लेन्स एट विच प्लेस, हरिद्वार, एंड हियर इट फ्लो साउथ टू साउथ देन टू साउथ ईस्ट। ठीक है ना, एंड इट सेपरेट्स। तो आपने द गंगा एंटर्स प्लेन्स एट हरिद्वार, तो आपने द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट विच प्लेस, हरिद्वार। द गंगा सेपरेट्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज नेमली, इसके जो बेगैरती एंड हुगली। बहुत क्वेश्चन है, द गंगा सेपरेट्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज नेम द टू। तो आपने द गंगा सेपरेट्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज नेम देम, इसके बेगैरती एंड हुगली। तो आपने याद रखूंगा, द गंगा एंटर्स इनटू प्लेन्स एट हुगली बंगाल। ठीक है ना, तो आपने याद रखना, व्हेन गंगा रीचेस बंगाल इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, दैट इज बेगैरती एंड हुगली। ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। बेगैरती फ्लोज इनटू बांग्लादेश वायर इट इज नेम्ड एज पद्मा। ठीक है ना, तो आपने याद रखना इसमें। तो फैक्ट आपने, द गंगा जो है इट एंटर्स प्लेन्स एट हरिद्वार एंड आफ्टर दैट द गंगा सेपरेट्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज नेम्ड एज बेगैरती एंड हुगली। द बेगैरती फ्लोज इनटू बांग्लादेश, द बेगैरती फ्लोज इनटू बांग्लादेश वायर इट इज कॉल्ड पद्मा। बोथ द बेगैरती फ्लोज इनटू बांग्लादेश वायर इट इज कॉल्ड एज पद्मा। हुगली हैज हाईएस्ट टाइडल बोर ऑफ इंडिया। बहुत उनको सवाल बन सकता है, विच डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा हैज हाईएस्ट टाइडल बोर ऑफ इंडिया, इसमें हुगली। which distributary of Ganga has highest tidal bore of India। which distributary of Ganga has highest tidal bore of India, इसमें हुगली। द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना लाइज एट, इसमें प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना लाइज एट, इसके प्रयागराज। ये आपने फैक्ट याद रखना होगा। तो उससे पहले आपने याद रखना होगा इसमें, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गंगा, इसका सही है 2525 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, 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 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गंगा, इसके 2525 किलोमीटर। इट पास थ्रू यूपी, यूके
ठीक है ना, शेयर्स। क्वेश्चन बनता है आपने याद रखना, द लेंथ ऑफ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गंगा, इसमें 2525 किलोमीटर। यूपी एंड यूके शेयर्स मोस्ट ऑफ द गंगा बेसन। सवाल इस विच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स मोस्ट ऑफ द गंगा बेसन, इसका सब है उत्तर प्रदेश एंड यूके, ठीक है ना। तो आपने कहा द सवाल विच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स मोस्ट ऑफ द गंगा बेसन, इसका सब है यूपी एंड यूके एंड देन बिहार बंगाल, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, इसमें गंगा। विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, इसका सब है गंगा। The mouth of Ganga is Bay of Bengal. The mouth of Ganga is Bay of Bengal. ये आपने याद रखना। The mouth of Ganga is in इसका Bay of Bengal. That is the river Ganga finally discharges itself into Bay of Bengal near Sagar Island. बहुत ही important question है। Which is the mouth of Ganga, इसका जो है Bay of Bengal। बहुत ही important है। Which is the सवाल बनता है which is the mouth of Ganga, इसका जो है Bay of Bengal. That is the river Ganga finally discharged into, इसका जो है Bay of Bengal, ठीक है ना, near Sagar Island। सवाल इस तरह बनता है the Ganga discharges itself Bay of Bengal at which place, is Sagar Island। बहुत ही important क्वेश्चन है। the Ganga, तो आपने the Ganga discharges itself into Bay of Bengal at which place, बहुत ही important, the Ganga discharges itself into Bay of Bengal at which place, इसका Sagar Island। क्वेश्चन आपने याद होगा, द यमुना इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, इसके बाद यमुना। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना। द यमुना एंड सन आर द मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, देखिए ना, द यमुना एंड सन आर द मेजर बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो आपने द यमुना एंड सन आर द मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आर रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी एंड महानदी, ठीक है ना। द गंगा रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। ये आपने फैक्ट याद रखना होगा। पहले बात करते हैं हम यमुना के बारे में। पहले ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करने से पहले आपने याद रखना होगा, इसमें आपने याद रखना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज, इसके बाद यमुना। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इसका सिर्फ गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसको यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना। ये आपने याद रखना, द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका सिर्फ यमुनोत्री ग्लेशियर। द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका जो है यमुना जो है, इट इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इट इज द मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इट राइज एट, इसको यमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। इनको आपने याद रखना, द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका सिर्फ यमुनोत्री ग्लेशियर। द यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज द सोर्स ऑफ origin of Yamuna is located in which state of India, इसमें उत्तराखंड। बहुत ही क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना इसमें द यमुनोत्री ग्लेशियर। तो आपने द यमुनोत्री ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें उत्तराखंड, ठीक है ना। तो आपने याद रखना, द यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन बंदर पंच रेंज। तो आपने याद रखना इसमें, द यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन बंदर पंच रेंज, ठीक है ना, इन यूके, इन उत्तराखंड, ठीक है ना। ये आपने याद रखना, the largest tributary of Ganga originates from Yamunotri Glacier in Bandar Panch Range, in Uttarakhand. The Yamuna joins Ganga at, इसके बाद इलाहाबाद। बहुत the Yamuna joins Ganga at which place, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है ना। ये आपने उधर में the Yamuna joins Ganga, बहुत the Yamuna joins Ganga at which place, इसके बाद इलाहाबाद, ठीक है ना। ये आपने प्रयागराज इसको कहा जाता है, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है ना, प्रयागराज, ठीक है ना। ये आपने याद रखना इसमें प्रयागराज। सवाल इस तरह बनता है, द यमुना, तो आपने द यमुना जॉइनस, तो आपने द यमुना जॉइनस गंगा एट विच प्लेस, इसका जो है प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना आर चंबल, ठीक है ना, सिंध। द नेम इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, इसके चंबल, सिंध, बेटवा, कोली, केनॉन, ठीक है ना। तो आपने याद रखना आर द मेन ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है ना, दमादार, कोसी। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ, बहुत नेम इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, इसका सब चंबल, सिंध, बेटवा, काली, केनॉन, दमादार, कोसी, ठीक है ना। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ, बहुत नेम इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, इसके चंबाल, सिंध, बेटवा, कोली, केमॉन, दमादार, कोसी। बहुत विच आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, इसके चंबाल, सिंध, बेटवा, काली, केनॉन, दमादार, कोसी। इसके लिए हम ट्रिक फिर पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। फिलहाल क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम is located on which river, इसका river Ganga river. The Gandhi Sagar Dam is located on, तो अपने the Gandhi Sagar Dam has been constructed on which river, इसमें Ganga river, ठीक है ना। The Gandhi Sagar Dam has been constructed on which river, इसमें Ganga river. The Gandhi Sagar Dam is located in, इसका Rajasthan Madhya Pradesh border. The Gandhi Sagar Dam which has been constructed on Ganga river is located on which border, इसमें Rajasthan Madhya Pradesh border, ठीक है ना। Gandhi Sagar Dam, सवाल इसमें Gandhi Sagar Dam has been, सवाल है Gandhi
Sagar Dam has been constructed on which river? इसमें river Ganga. The Gandhi Sagar Dam lies in which states of India? इसमें Rajasthan and Madhya Pradesh border. Pratap Sagar Dam has been constructed on which river? इसमें Ganga river. Pratap Sagar Dam has been constructed on which river? इसमें Ganga river. बोलते हैं the Pratap Sagar Dam has been constructed on which river? इसमें Ganga river. Question है Jawahar Sagar Dam has been constructed on which river? इसमें Ganga river. The Kota barrage all in Rajasthan. तो आपने याद रखना इसमें द गांधी सवाल पूछता है नेम इंपॉर्टेंट डैम्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा रिवर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम द डैम्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर गंगा. इसका इसमें गांधी सागर डैम, प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज. दे ऑल आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसमें राजस्थान. तो आपने नेम इंपॉर्टेंट डैम्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा रिवर. इसमें गांधी सागर डैम, प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज. ठीक है ना. दे आर ऑल इन राजस्थान. दीज आर द चंबा वैली प्रोजेक्ट्स ऑन द चंबाल रिवर. ठीक है ना. तो आपने याद रखना दीज आर द चंबाल वैली प्रोजेक्ट्स ऑन चंबाल रिवर. ठीक है ना. ये आपने याद रखना द गांधी सागर डैम, प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज. दे आर लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया और ऑन द चंबाल वैली ऑन चंबाल रिवर. ठीक है ना. तो आपने द गांधी सागर डैम, प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? इसका सही है चंबाल रिवर विच इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर. ठीक है ना. ये आपने याद रखना इसमें. कोसी जो है कोसी, तो आपने याद रखना पहले द गांधी सागर डैम, प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज. दे आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसमें राजस्थान. तो फैक्ट बन सकता है द गांधी सागर डैम, प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? इसमें चंबाल रिवर. चंबाल रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना. ठीक है ना. यमुना के लिए जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसको हम ट्रिक करेंगे. फिर काली रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसमें डून वैली. बोलते द काली रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसमें डूल वैली. बोलते हैं काली रिवर जो है इट इज ऑल्सो द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना. इट ऑरिजिनेट्स इन, इसको डून वैली. बोलते हैं द काली रिवर ऑरिजिनेट्स